Good morning friends, this is chemistry online class and today we discuss about the Bravacitis, then relation between the molar mass, age length and density of a molecule. Then secondly we discuss about the packing in solids. This is very important because in that case we have to discuss the three type of packing that use in case of the crystal structure. One is called a closed packing in one dimension, second is called a closed packing in two dimension, and third is said to be the closed packing in three dimension. ये रहेगा. Now this is very important and this chapter is new to you because इसके पहले हमने कभी solid state के बारे में ज़्यादा discuss नहीं किया है in previous years of your education, but this year we have to discuss this in a detail and this is very important topic. But once you understand it, that very simple to learn to it. Now see this is the part that we are to discuss today, or we are to cover this point in today's online class. Now see, in the last lecture we have discussed the three main type of unit cells. ये भी मैंने आपको बताया था कि वैसे 7 type of unit cells हैं, and unit cells are means this is the three-dimensional repeating units which repeats throughout the crystal, and because of that the crystal is formed and that's why it is said to be the unit cell. मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था that if you have to prepare a wall, अगर wall तैयार करना है तो हम bricks यूज करते हैं, एंड ब्रिक्स क्या है, एक फिक्स डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या करते हैं, थ्री डायमेंशनली रिपीट करते हैं, लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज एंड हाइट वाइज, तब जाके वो कंप्लीट वॉल तैयार होता है. एंड दैट्स व्हाई इन केस ऑफ दैट वॉल द ब्रिक्स इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड अ यूनिट सेल. इट इज अ स्मॉल थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट एंड दैट स्मॉल थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट इज नथिंग बट इट इज सेड टू बी द यूनिट सेल. Now there are three main type of unit cell that we already discussed in previous lecture. Now see, the first one is called a simple cubic unit cell. In that case the particles are present or atoms are present only at the corner of the regular cube. जो हमारा क्यूब रहेगा उसके कॉर्नर के ऊपर ही सिर्फ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे. ऐसा जो रहेगा that is called a simple cubic crystal and it is abbreviated as HCC. Second is called a body centered cubic unit cell, abbreviated as BCC. And in that case the atoms are present at the corner of the regular cube, but beside that one extra atom is present at the center of the cube, and that's why we can say that that is nothing but it is said to be the body centered cubic unit cell, abbreviated as BCC. Okay, then third part is nothing but it is said to be the FCC, face centered cubic unit cell. और ये जो FCC होता है उसमें क्या होता है, the atoms are present at the corner of the cube, but beside that each faces, at the center of each faces the atoms are present. मीन्स कॉर्नर के ऊपर तीनों इस पे रहेंगे, लेकिन साथ में क्या होगा, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर के ऊपर रहेंगे. In case of the body centered, corner and center of the cube, and in case of the FCC, corner and at the center of each faces. ये रहेगा, and that's why we can say that this is nothing but this is called a main three type. और हमने नया टाइप डिस्कस किया था that is called a, again it is called a base centered cubic unit cell. Base center, इसको पहले उसको हम बोलते थे that is called a end center. यानी कैसा है, इसमें अगेन द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर में प्रेजेंट रहेंगे, बट बिसाइड दैट द एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अपोजिट फेसेस. जो अपोजिट फेसेस रहेंगे उसके सेंटर में, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये जो है दिस इज नथिंग बट दिस इज सेड टू बी द क्यूब, और ये फेस है एंड दिस इज अगेन अ फेस, इसके पीछे वाला, तो ये अपोजिट फेस हो गए, और ये फेस और ये फेस ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए. तो इनके सेंटर में जो एटम रहेगा अगर ऐसा प्रेजेंट होगा तो वी कैन से दैट इज नथिंग बट इट इज सेड टू बी द एंड सेंटर, और इट इज इन न्यू सिलेबस इट इज नोन एज अ बेस सेंटर. देखो प्रीवियस सिलेबस में इसका नाम था एंड सेंटर, एंड इन न्यू सिलेबस दैट एंड सेंटर इज सेड टू बी द बेस सेंटर. हमको दोनों नाम याद रखना है, आएगा आपको बेस सेंटर के नाम से, लेकिन अगर
इसका मीनिंग हमको पता नहीं चाहिए। एज सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड हैविंग द सेम मीनिंग, हैविंग द सेम मीनिंग, ये हमने डिस्कस किया था। दीज आर द 4 एंड टोटल वैसे 7 यूनिट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स है एंड दैट 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स टोटल फॉर्म द 14 ब्रेविस लैटिस। कितने? 14 ब्रेविस लैटिस। वो टेबल में ब्रेविस लैटिस दिए हैं 14 टाइप के, जिसमें प्रिमिटिव और सिंपल होता है। इन दैट केस ओनली द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। हमेशा याद रखो, वो टेबल के बारे में मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, वो आप वहाँ देख लेंगे। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखो, जहाँ भी प्रिमिटिव या सिंपल वर्ड आ गया वहाँ हमेशा एटम्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। इसीलिए हमने ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किए। बॉडी सेंटर यानी बेस में, उसके सेंटर में, बॉडी के सेंटर में, फेस सेंटर यानी एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस एंड बेस सेंटर यानी अपोजिट फेसेस के सेंटर के फेस के सेंटर में ऐसा अगर एटम होगा तो दीज आर द टाइप्स। और ये सब यूज करके हम कितने ब्रेविस लैटिस तैयार कर सकते हैं? 14। कितने? टोटल 14। तो वो आपको टेबल में दी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हमको एंगल याद रखने की जरूरत नहीं, अल्फा बीटा गैमा वगैरह, वो हमारे न्यू सिलेबस में नहीं है। लेकिन फॉर अ सिंप्लिसिटी यू कैन रिमेंबर इट, बट बाकी सब हमारा वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिलीट हो चुका है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स क्या होते हैं। This is 7 type of unit cells, ठीक है? This is called a 7 type of unit cell, ठीक है? अब यहाँ देखो, ये जो हमारा है 1 2 3 4 5 6 and 7, these are the 7 type of unit cells। ये 7 type of unit cells है, ठीक है? और एक चीज यहाँ हमको दिख रहा है, this is called ABC से या ABC से रिप्रेजेंट किया है। That ABC are nothing but that is the distance called the age length, age का लेंथ है। So small ABC are nothing but called the age length। जनरली हम यहाँ इसके बाद जो हमको रिलेशन डिस्कस करना है वहाँ हम A यूज करेंगे, स्मॉल a। लेकिन यहाँ ABC इसलिए दिया है कि if the age length, if the ages are same, sides are same, then it is represented by A। अगर अलग अलग है तो ABC, ऐसा दिया है, ठीक है? इसीलिए रिप्रेजेंटेशन देखो। अब इनके नाम देखो कैसे। फर्स्ट इज कॉल्ड अ क्यूबिक यूनिट सेल, और इसके 4 टाइप हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, समझ गए ना? कौन से इसके 4 टाइप? सिंपल क्यूबिक, बेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। ये इसके टाइप है। ऐसे अगर इसके 4 ऐसे करके जाएंगे हम, तो जैसे इसके हम इसको इंपॉर्टेंट 3 समझते हैं। बेस सेंटर मैंने अभी बताया था कि न्यूली एडॉप्टेड है, तो दैट्स व्हाई दिस इज 3। इसके कितने टाइप है? 2 है, इसके 4 है, इसके 1 है। इट कंटेन्स द 1, इट कंटेन्स द 2 एंड इट कंटेन्स द 1। सो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो 3 + 2 5 + 9, 9 + 1 10, 1 11, 11 + 2 13 and this one called 14। so total 14 ब्रेविस लैटिस आर देयर। समझ गए? वो टेबल में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज जो हमको याद रखना है, इसमें जहां एक है, जैसे इसका टाइप ओनली 1 है, जहां एक टाइप है वो प्रिमिटिव या सिंपल रहेगा। और प्रिमिटिव और सिंपल अगर रहेगा तो वहां हमेशा एटम्स, ये जो रेड कलर के डॉट्स यहाँ यूज किए हैं, वो रेड कलर के डॉट्स क्या है? दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एटम्स। वो क्या है? पोजीशन ऑफ एटम्स है, एटम्स का पोजीशन है वो, ये एटम्स है। तो जहां भी प्रिमिटिव या सिंपल अगर वर्ड है, देखो 2 चीज याद रखना है। ये 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हैं, सबके अलग अलग है। क्यूबिक के 3 टाइप है, टेट्रागोनल के 2 टाइप है, ऑर्थोरोम्बिक के 4 टाइप है, रोम्बोहेड्रल का 1 है, हेक्सागोनल का 1 है, मोनोक्लोनिक के 2 है, ट्राइक्लिनिक के 1 है। ऐसे टोटल 14 हो जाएंगे। जहां मैंने बताया जहां 1 है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, जहां 1 है यहाँ भी 1 है, तो जहां 1 है वहां क्या होगा? इट कंटेन्स द टाइप, नेम ऑफ दैट टाइप इज कॉल्ड सिंपल और इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। सिंपल और प्रिमिटिव। सिंपल और प्रिमिटिव अगर होगा तो वी कैन से दैट
वहाँ हमेशा ये लिख के रखो आप, सिंपल और प्रिमिटिव अगर होगा तो वहाँ एटम्स हमेशा कहाँ रहेंगे, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, वो जो रहेगा उसका जो स्ट्रक्चर है उसके कॉर्नर पे ही एटम रहेंगे, कहीं और नहीं रहेंगे। अगर कहा इफ इट इज अ टाइप कॉल्ड अ प्रिमिटिव और सिंपल, और जहाँ यूनिट सेल का एक ही टाइप है वहाँ हमेशा वो प्रिमिटिव और सिंपल ही रहेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम याद रखेंगे हमेशा के लिए। नेक्स्ट, अब देखो इसके नाम देखेंगे और इसका टाइप देखेंगे। क्यूबिक, फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड अ क्यूबिक। क्यूबिक के अब यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है, देखो ये क्यूब है इसलिए इसको नाम है क्यूबिक, और यहाँ मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है ए एंड ए। क्या दिया है, ए एंड ए। ये आपको चार्ट दिख रहा है सभी को? हाँ ठीक, चलो सी हियर, दिस इज कॉल्ड द, here the edge length or edges are represented by a and a, hence we can say that all the sides are same because they are represented by a। समझ गए, ये for a simplicity हमने ऐसा यूज किया, they are represented by the a, और तीनों अगर a है तो we can say that all the sides are same, hence this is called a cubic unit cell, it is said to be the cubic unit cell। it contains the 3 types, it contains the 3 type। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, the cubic unit cell contains the 3 type, बराबर है। the first one is called the simple cubic unit cell or it is called a primitive, second is called a body center and third is called a face center है। these are the 3, यानी इसके कितने टाइप है, 3 टाइप है। हम 7 से कितने बना रहे हैं, 14 ब्रेविस लैटिस। second is called a tetragonal, second is said to be the tetragonal and इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, a and c। कैसा हो सकता है, अब हमको समझ में आया कि जहां a है तो we can say that this side and this side are same but the third side is different, height is different। समझ गए, इसलिए ये थोड़ा सा लॉन्ग है तो हाइटेड है कि नहीं, hence we can say that 2 sides are same but the third side is different, hence यहाँ रिप्रेजेंट किया है a and c। टेट्रागोनल के 2 टाइप है, टेट्रागोनल के 2 टाइप है, वन इज कॉल्ड द सिंपल और प्रिमिटिव, one is called the simple और primitive and second is said to be the body center। देखो यहाँ 2 टाइप है, primitive and body center। primitive यानी simple, simple यानी only the atoms are present at the corner of the this structure। ये जो structure है टेट्रागोनल उसके कॉर्नर के ऊपर, यानी ये हमारा जो डायग्राम है this is nothing but this is the diagram of first type called a primitive or a simple। समझ गए, you get that point। now see here second, इसका जो सेकंड पार्ट है that is nothing but it is called a body center। अब body center का मीनिंग हमको पता है, कॉर्नर के ऊपर भी होते हैं और एक्स्ट्रा आइटम कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द कॉर्नर, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। इसके वजह से यहाँ इसका जो सेंटर है यहाँ भी एक एटम प्रेजेंट रहेगा, यानी ये कॉर्नर के ऊपर रहेंगे और एक्स्ट्रा एटम यहाँ प्रेजेंट रहेगा, hence that becomes the body center tetragonal unit cell। इसके 2 टाइप है, कौन से, सिंपल और प्रिमिटिव एंड सेकंड इज सेड टू बी द बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल। समझ गए, ये रहेगा। थर्ड इज कॉल्ड द आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में देखो ए बी एंड सी है, एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी। क्या मीनिंग होगा, 3 साइड्स आर डिफरेंट, 3 साइड्स आर डिफरेंट, तीनों भी साइड्स कैसे हैं, डिफरेंट है एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑर्थोरोम्बिक। एंड ऑर्थोरोम्बिक कंटेन्स हाउ मेनी टाइप, टोटल 4 टाइप्स आर देयर। ऑर्थोरोम्बिक के टाइप कैसे है, 4 टाइप है। पहला कौन सा है, प्रिमिटिव, फर्स्ट टाइप इज प्रिमिटिव, सेकंड बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर। इसके अलावा कहीं जाएगा नहीं, जो हमने पहले जो कल मेन डिस्कस किए थे, प्रिमिटिव यानी सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो है दिस डायग्राम इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द डायग्राम ऑफ द फर्स्ट टाइप, कॉल्ड सिंपल और प्रिमिटिव, जहां हमेशा एटम्स कहां प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर ऑफ दिस ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा रहेगा बॉडी सेंटर। अब सभी इसमें ये कॉर्नर के ऊपर रिपीट रहेंगे, वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन बॉडी सेंटर में क्या होगा, एक्स्ट्रा यहाँ प्रेजेंट रहेगा। फेस सेंटर में क्या होगा, ये जो फेसेस है उनके सेंटर में एक फेसेस रहेगा, एक प्रेजेंट रहेगा। और हमारा बेस सेंटर यानी क्या रहेगा, हमेशा हम वर्टिकल लेते हैं तो यहाँ एक रहेगा और यहाँ एक रहेगा। समझ गए,
ये जो बेस इसका अपोजिट बेस है अप एंड डाउन वाला उसके सेंटर में लेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फोर टाइप्स। ऑर्थोरोम्बिक कंटेन्स द फोर टाइप्स, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर। समझ गए? यानी इसके तीन टाइप, इसके दो टाइप, इसके फोर टाइप। क्यूबिक के तीन टाइप कौन से? सिंपल, बॉडी एंड फेस सेंटर। टेट्रागोनल के दो टाइप कौन से हैं? सिंपल एंड और प्रिमिटिव, और सेकंड इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। एंड ऑर्थोरोम्बिक की चार है, सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड। समझ गए? ये हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में कैसा है? द एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए। तीनों भी एजेस किससे रिप्रेजेंट किए? ए से। हम क्या बोलेंगे? ऑल द साइड्स आर सेम, और ऑल द साइड्स आर सेम और इक्वल। समझ गए? ऐसा रहेगा। एंड हियर इट कंटेन्स ओनली वन टाइप, इट कंटेन्स ओनली वन टाइप। अगर वन टाइप है तो उसका नाम क्या रहेगा? प्रिमिटिव और सिंपल। और डायग्राम कौन सी रहेगी? ये ही रहेगी। ओनली द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ये रहेगा। सेकंड, नेक्स्ट इज कॉल्ड द हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है? हेक्सागोनल, अब देखो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है लेकिन मीनिंग वही है, ठीक है? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या है? अगेन मैंने देखा यहाँ ए और सी, टू साइड्स आर सेम, थर्ड साइड इज डिफरेंट। समझ गए? हेक्सागोनल है। हमको डायग्राम दिख रही है, हेक्सागोनल है। इट कंटेन्स ओनली वन टाइप, और कौन सा रहेगा वो? प्रिमिटिव और सिंपल। एंड दिस इज द डायग्राम, ओनली द आइटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द दिस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। Next is called a monoclinic. Again they are represented by A, B, C. All three sides are different. तीनों भी sides कैसे हैं? Different है। And it contains two type. Monoclinic के दो type है। One is called a simple or primitive, and second is called a base center. First type is called a primitive or simple, and second is said to be the base center. अब primitive वाले कौन सा रहेगा? ये, this is the type. Atoms are present at the corner of the क्यों? बेस सेंटर्ड है। ये जो अपोजिट बेस है जनरली हम टॉप और बॉटम वाला लेते हैं, इसीलिए इसके पहले इसका नाम क्या था? एंड था, एंड सेंटर। हम एंड ऐसा ही लेंगे ना, टॉप और बॉटम का जनरली डायग्राम में, इसीलिए इसको। लेकिन अपोजिट फेसेस ले सकते हैं हम, फ्री टू टेक द एनी फेसेस, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए? इट शुड बी अपोजिट, ऐसे। समझ गए? ऐसा रहेगा। तो जनरली हम टॉप और वर्टिकल वाले थे, टॉप बॉटम वाले, तो यहाँ फेस के सेंटर में रहेगा तो दैट बिकम्स द बेस सेंटर। सो दीज आर द टू टाइप्स। एंड लास्ट इज कॉल्ड द ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या है? ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, ए बी सी, एंड इट कंटेन्स ओनली वन टाइप, एंड दैट इज a primitive or simple. And primitive or simple means only the atoms are present at the corner of the cube. This is the diagram for that 14 type of unit cells. समझ गए? ब्रेविस लैटिस जो है 7 मेन टाइप है, उसके ऊपर से हम क्या कर रहे हैं? हमने 14 ब्रेविस लैटिस तैयार किया। दैट इज वेरी सिंपल। याद रखो, एक बार अगर उनको समझ में आ गया तो ये याद रखना बहुत ईजी है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन से हमको रीड करना जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट सेल, ठीक है? ये यूनिट सेल के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमको जो डिस्कस करना है दैट इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन मोलर मास, एज लेंथ एंड डेंसिटी। देखो ये जो है A with the age length, ठीक है, of that crystal structure or cube or any that unit cell, type of unit cell. Then small m is the mass of one particle. Small m with the number of particles. Na is the Avogadro number. Rho is the density of a crystal, and capital M is the molar mass.
ये सब वेरिएबल्स हमको यूज करना है, ठीक है, ये रहेगा, समझ गए। दिस इज एज लेंथ, m small n is called the mass of particle, n is called the number of particle, na is called the Avogadro's number। हमेशा Avogadro's नंबर लिखते समय हमको कैपिटल N कैपिटल A लिखना है, लेकिन A should be at the base of the N, ऐसा रहेगा Na। Rho density of a crystal and capital N is called the molar mass। What we are discussing? We are discussing the relation between molar mass, age length and density। ये हमको लिखना है, ठीक है। नाउ सी मास ऑफ क्रिस्टल, आपको मास ऑफ क्रिस्टल लेना है और मास ऑफ यूनिट सेल बोलते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि मास ऑफ यूनिट सेल अगर कैलकुलेट करेंगे और यूनिट सेल का अगर रिपीट करेंगे, बिकॉज इट इज रिपीटेड तो इट गिव्स द टोटल, तो कैसे होगा, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू m इनटू n, स्मॉल m इनटू n। ये m क्या है, दिस इज द मास ऑफ वन पार्टिकल एंड n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ठीक है, ये रहेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया मास ऑफ यूनिट सेल। देन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे होगा, व्हाट इज द रिलेशन, मास ऑफ यूनिट सेल divided by volume of unit cell। Rho is equals to density, that is rho is called a density, and density is equals to mass of unit cell divided by volume of unit cell, because we know that according to the physics, rho, that is a density, is nothing but it is called the relation between the ratio of mass and volume। So mass of unit cell is nothing but m into n and volume of unit cell। Now see, हमने स्टार्टिंग में लिया था स्मॉल a is called the age length, यानी साइड का लेंथ है वो। अब अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेशन मैथ्स क्या बताता है, वॉल्यूम इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड लेंथ क्यूब, लेंथ क्यूब एल क्यूब होता है, लेकिन एल के जगह हमने यहाँ लिया है एज लेंथ, एज लेंथ यानी a से रिप्रेजेंट किया, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, a क्यूब बनेगा, वॉल्यूम बिकम्स a क्यूब, ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टेक द मोलर मास। Capital M is equal, molar mass is equals to, that is mass of one particle into number of particle per unit per mole, sorry, number of particle per mole, and that becomes m into Na। Mass of particle is m or number of particle per mole is nothing but it is given by the Avogadro's number, hence it is called as Na। So capital M is equals to m into Na, therefore small m is equals to क्या होगा, m into Na, m into Na। स्मॉल m is equals to कैपिटल M divided by Na, ये रहेगा, ठीक है। दिस इज दैट m is equals to m divided by Na। अब हमारे इसका पहले जो रिलेशन था वो क्या था, rho is equals to mass upon a cube, हाँ ऐसे रिलेशन, rho is equals to m into n divided by a cube, but we know that what is value of n small m divided by Na, so put that value here, what we get the m means n capital M into n divided by a cube into Na। so this is the equation, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे हम, rho is equals to n into m capital M divided by Na into a cube। This is the relation between density, then age length and molar mass. This is the final equation, and in case of the solid state, the numericals are based on this
टाइप ऑफ फार्मूला, ये फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल बेस है जो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन। नेक्स्ट हमको जो डिस्कस करना है दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड पैकिंग इन सॉलिड्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैकिंग इन सॉलिड्स। पैकिंग इन सॉलिड्स। अब पैकिंग इन सॉलिड्स में मैंने बताया था 3 टाइप के हमको डिस्कस करना है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये सब डिस्कस करते समय हमको और एक चीज याद रखना है दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट वी डिस्कस? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर मींस अगर मैंने पर्टिकुलर एक एटम कंसीडर किया है, उसके कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट में कितने एटम्स है, दैट नंबर गिव्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। समझ गए? मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो ये चीज हमको याद रखना है। 1 डायमेंशन, फर्स्ट इज कॉल्ड द 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मींस ओनली वी आर यूजिंग द 1 डायमेंशन, कोई भी एक डायमेंशन यूज करेंगे, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ठीक है। अब देखो कैसे रहेगा। Now see here, this is 1 डायमेंशन पैकिंग डिस्कस कर रहे हैं। अब 1 डायमेंशन पैकिंग कैसे रहेगा देखो। देखो 1 डायमेंशन पैकिंग कैसे रहेगा। This is called a 1 dimension packing. Only the atoms are present one after another. दिख रहा है आपको? चार्ट दिख रहा है कि नहीं सबको? हाँ, see here. ये देखो, atoms are placed one after another. Only we are using only 1 dimension. एक ही dimension use कर रहे हैं, that is the length. है कि नहीं? Height नहीं use कर रहे हो, width नहीं use कर रहे हो. Only we are using the length. The atoms are placed one after another, and that's why this is nothing but it is said to be the 1-dimensional close packing. माइक बंद करो सभी। It's called the 1-dimension close packing. अब और एक चीज हमको देखना है इसमें, देखो मैं बता रहा हूँ। अब ये जो रेड कलर का है, यहाँ मैंने एटम, दिस balls are used to represent the atoms. ये रेड कलर का, पिंक कलर का बॉल मैंने यहाँ रखा है, एटम्स है। इसके साइड में कितने एटम्स हैं कांटेक्ट में? 2. Hence coordination number of this atom is 2. मैंने बताया था coordination number यानी जितने क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये रहेगा। लेकिन अगर ये एटम मैंने यहाँ रखा तो फिर से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा। लेकिन अगर मैंने यहां रखा तो कॉर्नर पे, एंड पे अगर रखा तो इट कंटेन्स ओनली 1। समझ गए? सो अगर नंबर ऑफ द आइटम इज प्रेजेंट इन बिटवीन दैट लाइन देन इट कंटेन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर 2। लेकिन अगर कॉर्नर पे इट कंटेन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर 1। ये रहेगा। This is called a 1-dimensional packing. It is said to be the 1-dimensional packing. ये रहेगा। Second is said to be the 2-dimensional. टू डायमेंशनल में हम क्या करेंगे? 2 डायमेंशन यूज कर रहे हैं। कौन से? लेंथ एंड हाइट। लेंथ एंड हाइट। लेंथ वाला आपको पता है अभी, ये वाला, एंड दिस इज द हाइट।
समझ गए? ये लेंथ एंड दिस इज हाइट। अब एक के ऊपर रख रहा है ना मैं, तो हाइट भी बनेगा, यानी लेंथ भी बन रहा है, हाइट भी बन रहा है। इसके पहले मैं सिंगल लाइन यूज किए थे, अब ये डबल हो गया। सो दिस इज कॉल्ड अ टू डायमेंशन, दिस सेड टू बी द टू डायमेंशनल। अब अगर मैंने ये ऐसा रखा, सी हाँ, ये जो सेंट्रल एटम है इसके कांटेक्ट में कितने एटम है? 1 2 3 4 है क्या? एंड दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। पिंक एटम देखो, पिंक एटम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 रहेगा, बिकॉज 4 एटम्स आर कांटेक्ट विद ईच अदर, 4 एटम्स आर कांटेक्ट विद ईच अदर। ये रहेगा, दिस इज, ठीक है, ये एटम रहेगा। नाउ सी द नेक्स्ट। यहां हमको दो टाइप डिस्कस करना है। मैं बता था आपको दो टाइप कोर्सेज थे। टू डायमेंशन मेथड कंटेन्स द टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड द AA टाइप and second is called the ABAB type, AA and ABAB type। अब भी जो मैंने रखा था that is called the AA type। ये कौन सा है? AA type। Why it is called AA type? Because ये जो फर्स्ट लाइन है, इस एटम के ऊपर हमने दूसरा एटम रखा है, देखो, यानी ये जो एटम है इसका ये क्या है? क्रेस्ट हो गया, और दो एटम के बीच में जो प्लेस है दिस इज कॉल्ड ट्रफ। ये जो गैप देख रहे हैं, तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट अगर हमने रखा, देखो ये क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, यानी एटम के ऊपर एटम अगर रखा तो इसको क्या बोलते हैं? AA टाइप। क्यों AA टाइप? अगर ये लाइन हमने A से रिप्रेजेंट की है तो सेकंड लाइन भी उसके जैसी है, तो वो भी A बनेगा, एंड दैट्स व्हाई द टाइप इज कॉल्ड AA टाइप। सेड टू बी द AA टाइप, ये रहेगा। दूसरा टाइप देखो ABAB टाइप। ABAB टाइप में कैसे होगा? सी मैंने ये जो है दो आइटम, पहली लाइन के दो आइटम के बीच में मैंने ऊपर का आइटम रखा। अब एटम के ऊपर एटम नहीं रखा, कहाँ रखा है? ये जो फर्स्ट लाइन के दो एटम है उसके बीच में मैंने एटम रखा है, ये दो एटम के बीच में ही एटम रखा है, यानी इनके क्रस्ट ट्रफ के बीच में मैंने वो एटम रखा है। तो ये अगर फर्स्ट लाइन A से रिप्रेजेंट करेंगे तो सेकंड लाइन उसके जैसी नहीं है, तो इट बिकम्स B, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड AB टाइप। इट इज सेड टू बी द AB टाइप। तो यहाँ हमको तीन टाइप है, दो टाइप है, वन इज कॉल्ड AA टाइप एंड सेकंड इज सेड टू बी द AB टाइप। अब हमको तीसरा टाइप डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशन में क्या होगा? थ्री डायमेंशन में होगा कि हमको तीनों डायमेंशन यूज करने हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है, ये रहेगा। समटाइम्स ये जो हमने अभी डिस्कस किया टू डायमेंशनल पैकिंग, दैट कॉल्ड द स्क्वायर पैकिंग, दैट कॉल्ड द स्क्वायर पैकिंग, क्योंकि चार आइटम्स आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनेगा, इसलिए स्क्वायर पैकिंग भी बोलते हैं उसको। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप, दैट इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल। थर्ड टाइप इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशन। ये देखो थर्ड टाइप, ये देखो थर्ड टाइप। ये थर्ड टाइप में आप ये जो ब्राउन सर्कल्स हैं उनको कंसीडर मत करो, ओनली कंसीडर द येलो एटम्स। ये हो गया तुम्हारा लेंथ, ये हो गया हाइट, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेड्थ। हो गया, ये तीन डायमेंशन हो गए, एंड दिस थ्री डायमेंशन मीन्स दिस इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल। यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ शो नहीं कर सकेंगे हम, बट एक एटम अगर कंसीडर करेंगे तो उसके अराउंड में कितने एटम्स रहेंगे? 6 एटम्स रहेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 रहेगा। यहाँ उसके दो टाइप है, लेकिन उसके पहले हमको एक टाइप डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ वॉइड्स। यानी वॉइड्स क्या होता है?
उसके बारे में डिस्कस करना है, तब जाके हम ये डिस्कस कर सकेंगे। एंड दैट्स व्हाई वो अभी होगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हमने ये पार्ट डिस्कस किया है, दैट इज कॉल्ड द प्रेमिस लैटिस रिलेशन एंड पैकिंग इन सॉलिड्स। तो 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन हमने कंप्लीट किया है। 3 डायमेंशन का जो पैकिंग है वो कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।